Hello everyone. Let us start another exercise of class 8th NCERT Maths. This is factorization. We are going to discuss about all the questions 1 to 3 of exercise 14.1. So, let's start the exercise. So, in this question number 1, we have to find the common factors of the given term. So, the first term is 12x. So, we factorize this first term 12 as we can take the LCM, or we can just write 12 can be written as 4 3s are 12. 4 can be factorized as 2 into 2, and then 3. The 2 2s are 4, 3s are 12, and the rest number is, here it is a variable x. Now 36, how to factorize this 36? 36 can be written as, we know 4 9s are 36. The 2 into 2 is 4. For 9 we can factorize it as 3 into 3. So this is 36. Now what are the common factors? What are the common numbers or the terms we can see? Here it is 2 and 2. 2 is same in both. Again 2 and 2. What else the common number here? 3 and 3. Okay, so the common factor for this term 12x and 36 is 2 2s are 4, 4 3s are 12. So the common factor, this is 2 2s are 4 into 3, this is 12. Okay, now let's move to the another question. We can solve the another question as, you can see the first part in this 2y and the second one is 22xy. So 2y can be factorized as 2 into y, and 22 can be factorized as 11 into 2xy. So let me write it. 2y can be written as 2 into y, and 22 xy, this can be written as 22 can be factorized as 2 into 11, and the rest is x and y. So what are the common number here? You can see 2 here, 2 is here, y again is here, and in second term also y. So the common factor, let me write as common factor as CF. So common factor is 2y. Now let's move to the third part. The third part also same way we can do. We'll factorize 14pq and then 28p square q square. So 14 can be factorized as 2 7s are 14, and this 28 can be factorized as 4 7s are 28. So let me write it 14 p q. This can be written as 2 7s are 14, and the rest is p and q. Now the second term is 28. 28 p square. P square means 2 times p, and q square means 2 times q. The 28 is what? 4 7s. 4 can be factorized as 2 into 2, and then 7. And p square means p into p, 2 times p, and q square means q into q. Now we'll check the common factor in both the terms. Now we can see 2 here, 7 and 7, p and p. So what else is left? Q. Q is also same. You can see q here and q here also. So the common factor is in both these two terms is, let me write it, 2 into 7 into p into q. We can write it as 14pq. In this way, we can find the question number 3. Question number 1, third part. Same way, we can move to the next part of this question. You can see 2x and then 3x square, then 4.
So 2 has a factor 2 into x. 3 has a factor 3 into x into x. X square means 2 times x. And then 4. So you can see the common factors, very small numbers. So we can just see 2 is same. No, 2 is not same because in first term there is 2, second is 3 and 4. So only 1 is same because x, there is x in first part, 2x is x, 3x square has a x, but 4 has a only constant. This is a constant 4, only no x is here. So the HCF or the common factor of 2x, 3x square and 4 is 1. There is only one common factor in this question number 1, fourth part. Now the question number 1, fifth part, we can check 6ABC. 6ABC, okay, 24AB square and 12A square B. So you can see 6ABC, okay. The second one is 24AB square. So now you know how to take the prime factors. You can take the prime factors and then you can find out the common number. But let me write it directly, the answer now. 2a square b. So what is common in 6, 24 and 12? You can see 6 ones are 6, 6 fours are 24 and 6 twos are. I can write it 6 ones are 6. 24 can be written as 6 fours are and 12 can be written as 6 twos are. So the common factor we can see the first part as 6. What else about the variables? There is a has a power 1. Here also a has a power 1. But here in 12a square b, a has a power 2. So the minimum power we will see now. To see the direct, how to solve the direct method, we can see a variable in both the terms. A square. 12 has a square. So only one a has a power 1. That is the minimum power. We'll see the minimum power. Here b has a power 1. B square. Here 2. And then again b has a power 1 in 12a square b. So the minimum power is b raised to the power 1. But we don't write 1. I'm just showing you. The answer is as 6ab. Now the third part, the next question, we'll check 10 PQ. You can directly see 10 PQ and 20 QR and in 30 RP. Can you find any number same here? P is in first term but P is not in the second term, but P is also in the third term. So P is not at all same in all the three terms. Q, we cannot find Q. We cannot find Q in 30 PR because 30 PR has only P and R variables. So what else is same here? 10, 20, 30. What is same? We can see 10 is the common factor for this question. Okay. In the seventh part, 10 PQ, 20 QR and 30 RP. Okay, now let's move to the eighth part. In this eighth part also, we'll see 3 x square y cube. Okay. The second term is 10 x cube and y square. And the third term is 6 x square and y square z. Can we see z in all the three terms? We cannot see z. Okay, we can see x. But what is the minimum power of x here? You can see the minimum power of x here. Let me take this color. 2. Here 3. Okay, and here also 2. So the minimum power is x raised to the power 2. What about the variable y? You can see here it is 3. Here it is 2 and again 2. The minimum power is y square. Z is not same. So we are leaving z. What else? 3, 10, 6. What is same here? We can see 10 is even number, but 3 and 6 both are divisible by 3, but 10 is not. So the answer is only x square y square. This is the common factor of this part.
Okay, now let us move to the next question. Now, in this question number 2, we have to factorize this. So this is a binomial expression. You can see 7x minus 42. In my question number 1, in previous question number 1, there were monomials and we were just finding the common factors. Now how to factorize this binomial? You can see 7x can be written as 7 into x. And 42 can be written as 7 6. Now you see the common factor in both these terms. 7 and 7 both have 7 common. Take this 7 one time. Okay, means just write 7 at one time. Put a bracket. Under the bracket we'll keep the remaining terms. X is left here. Keep the x under the bracket because 7 is out. 7 is common here. X is under the bracket. Separation sign is minus. Put this minus and the rest number is 6. 6 is left. Keep this under the bracket and close. This is the answer for this question. Now 6p minus 12q. Again 6 and 12. Which number is same here? What is the common factor here? 6 is same. In both here 6 is same. The left part is p because p is only left here. This is p. Separation sign is minus 2. 6 2s are 12. This 12 can be written as 6 2s are 12 and q. So this is the answer for this question. Now 7a square and 14a. Third part. What is the third part here? 7a square. Okay, 7a square plus 14. Also a. So you can see 7 and 14. Which number is common? 7 is common. Put this 7. And also you can see here it is a square. A square means 2 times a and a means only single a. There is. So what is the minimum power? 2 or 1? A has a minimum power 1 here. So put the minimum power here. Now make a bracket. Now how to solve? You see a square. A square means a into a. 1a I have taken out as a common. So 1a will be left under the bracket. Plus, separation sign is plus. Now 7 is out. This 14 can be written as 7 into 2. So I have taken this 7 out already here. Okay, this. Let me take another color so that you can understand. I have already written 7 here. Okay, this 7 I have already written here. What else is left under the bracket then? 2. So I'll write here 2. Okay, and this A जो क्वेश्चन में A है ये already बाहर है. So this is done and the answer is 7A times A plus 2. Now let us move to the another question. Okay, so here let me erase this all. Okay, so what else here? 16z plus 20z cube. Okay, so 16, this is negative 16. 16z plus 20z cube. So let me write in a factorized form so that you can understand it here. 16 can be written as what? 4 4s are 16. Z plus 20 can be written as 4 5s are 20. Z cube means how many times Z? 3 times Z into Z into Z. Now check the common factors here. What are the common number here? 4 here, 4 here. Okay, Z here. Again, one more Z here. So, okay, write the common term here, 4Z. Put the bracket. Now the left part is negative 4. So take this negative 4. Okay, nothing else because you can see 4 सिर्फ बचा था. 4Z हम पहले लिख चुके हैं तो 4 लिख दिया ब्रैकेट के अंदर. सेपरेशन साइन है प्लस. यहाँ पे क्या बच रहा था? 5. तो 5 को लिखेंगे हम. और क्या बच रहा था हमारा? Z और Z. 2 times Z मतलब Z स्क्वायर. ये हो गया आपका आंसर. इसको हम और प्रॉपर, क्योंकि भाई माइनस हमारा पहले है ब्रैकेट में, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5z स्क्वायर
-4, बीच में -4 ऐसे भी लिख सकते हैं। बोथ द वे आंसर आर करेक्ट, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ओके, नाउ मूव टू द another question, 20l square m plus 30a lm. So here also you can have to just write, let me delete it first. Okay, so 20l square m, so I'm writing here, brush ले लें, 20l square m plus 30a lm. सो 20 और 30 में क्या सेम है आपका? 20 और 30 में 10 सेम है, तो 10 हम अब डायरेक्ट बता रही थी, मैं डायरेक्टली बता देती हूँ। 10 ले लिया सेम, क्योंकि 10 और 20 और 30 में 10 सेम है। एल स्क्वायर, यहाँ पे देखेंगे एल स्क्वायर 2 है पावर, और यहाँ पे एल की पावर 1 है। सबसे छोटी पावर एल की क्या है? 1 है, तो उसको हमने लिख लिया। और m, यहाँ पे m की पावर 1 है, यहाँ पे भी m है, दोनों तरफ m हमारा निकल गया, तो मैं इसको राउंड कर लेती हूँ कि ये m हमारा कॉमन हो गया है, तो इस m को अब हम नहीं लिखेंगे। अभी हमारा ब्रैकेट बनाएंगे, 20 था, 10 हमने बाहर किया, 10 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 2। ओके, एल स्क्वायर था क्वेश्चन में, हमने एल की ओनली 1 पावर कॉमन ली, तो एक एल हमारा रह जाएगा। m पूरा का पूरा बाहर हो चुका है, ऑलरेडी कॉमन। 10 ऑलरेडी बाहर है हमारा, 10 बाहर है, यहाँ 30 है, तो 30 के लिए हमें 3 टाइम्स करना पड़ेगा, 10 3 ज़ा 30, और यहाँ पे a बच रहा है, a हियर, एंड l हमारा ऑलरेडी आउट है, कॉमन है, ये वाला l जो है पावर 1, ये हमने पहले ही बाहर कर रखा है, और m भी, तो ओनली a ही बचेगा। सो ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, नाउ सेम वे हम और क्वेश्चंस इसके सॉल्व कर सकते हैं। 5x square y एंड 15xy स्क्वायर, तो 5 और 15 में क्या कॉमन दिखता है आपको? 5 और 15 में हमारा कॉमन जाता है 5, तो मैं इसको लिख देती हूँ 5x स्क्वायर y माइनस 15xy स्क्वायर y स्क्वायर। सो 5 और 15 में कॉमन है 5, x की सबसे छोटी पावर क्या है यहाँ पे पावर आप देख सकते हैं, सेकेंड टर्म में पावर है 1, सो x की मिनिमम पावर को कॉमन लेते हैं, 1 लिया। अभी यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 2 है, मिनिमम पावर लिया, y की पावर 1 बना दिया ब्रैकेट। 5 ऑलरेडी बाहर है, यहाँ पे देखेंगे x स्क्वायर था, हमने सिर्फ x बाहर किया हुआ है, सो एक x हमारा अंदर रह जाएगा। ये y की पावर 1 ऑलरेडी बाहर है, सो इसको दोबारा नहीं लिखेंगे, बिकॉज ये हमने कॉमन ले चुके हैं। बच्चा सेपरेशन साइन माइनस, 15 के लिए यहाँ 5 में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3, ठीक है। और x की पावर 1 ये आप देख सकते हो ऑलरेडी हम बाहर ले चुके थे, तो हमें दोबारा नहीं लिखना है। y की पावर 2 है यहाँ, y की पावर 2 मतलब 2 टाइम्स y, तो 1 टाइम y ले चुके हैं, एक 1 मोर टाइम y रह जाएगा, सो ये आंसर हमारा हो जाता है। अभी 3 टर्म्स में भी सेम वे हम चलेंगे कि अगर 3 टर्म्स हैं तो 3 टर्म्स में हम देखेंगे क्या सेम है, और उसको फिर हम कॉमन लेंगे। जैसे कि 10a स्क्वायर है, ओके 10a स्क्वायर, 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर। अब देखेंगे a स्क्वायर यहाँ b स्क्वायर, तो ये तो बिल्कुल भी सेम नहीं है इनमें। और थर्ड टर्म है हमारा 20c स्क्वायर। ओके, सो ठीक है, 10, 15 और 20 में अब देखेंगे क्या सेम है। 10, 15 और 20 में हमारा कॉमन नंबर है 5। रेस्ट हम देखेंगे, फर्स्ट पार्ट में a स्क्वायर है, यहाँ b स्क्वायर है, यहाँ c स्क्वायर, तो और कुछ हमारा सेम नहीं जा रहा है, तो 5 को रखा कॉमन बाहर। 10 है तो 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 2 ब्रैकेट के अंदर, और a स्क्वायर क्योंकि हमने a बाहर नहीं किया है, माइनस 15 के लिए 5 हमने कॉमन ले रखा है, तो 5 में क्या मल्टीप्लाई करें? 3, क्योंकि 15 चाहिए है, और बचता है b स्क्वायर प्लस 20 में हमने 5 आउट कर रखा है, बचता है 4c स्क्वायर। दिस इज डन। नाउ सेम वे वील मूव टू द अनदर क्वेश्चन। हम 8th को ओरली कर लेते हैं। आप देखेंगे 8th में क्या है आपका 4a स्क्वायर प्लस 4ab एंड माइनस 4ca, तो 4 4 4 सब में 4 सेम है, तो 4 तो हमारा सेम जाएगा ही। अभी फर्स्ट में a स्क्वायर है, सेकेंड में ab है, और थर्ड में ca है, तो a भी सेम है, तो हम इसको लिख देते हैं 4 हमारा सेम था,
4 लिखा, और a स्क्वायर में 1 टाइम a हम लिखेंगे, और क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमारा क्वेश्चन में क्या था, 4a स्क्वायर नेगेटिव में था, ओके, 4a स्क्वायर हमारा नेगेटिव में था, इसीलिए हम माइनस a स्क्वायर यहाँ पे रखेंगे, और फिर प्लस 4ab में 4 हमने बाहर कर लिया, a भी बाहर कर लिया, तो बचेगा क्या यहाँ पे b, और 4ca माइनस है तो माइनस करके 4 मेरा बाहर है, ca यानी c हमारा रह जाएगा, a क्योंकि बाहर है। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द 8th पार्ट। ओके, अभी हम आते हैं 9th पार्ट में। 9th पार्ट भी हमारा ऐसे ही हो जाएगा, इरेज कर दें इसको हम। ओके, 9th में आते हैं। 9th में देखते हैं एक्स स्क्वायर वाई जेड, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर। आप देखोगे एक्स यहाँ पे भी, एक्स यहाँ पे भी, वाई भी दिख रहा है हमें, जेड भी दिख रहा है। अब मिनिमम पावर को हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे थर्ड टर्म में एक्स भी है, वाई भी है, और यहाँ पे जेड स्क्वायर भी। तो सबसे छोटी पावर एक्स की पावर यहाँ पे 2 है, सेकेंड टर्म में 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो मिनिमम पावर क्या है, एक्स की पावर 1। हम लिखते नहीं है 1, आई एम जस्ट शोइंग यू। और वाई हमारा सेम है, यहाँ पे वाई है, यहाँ वाई स्क्वायर है, और इधर हमारा फिर से y आता है, तो y गया और z कॉमन। अब बचेगा क्या क्या, आप देखोगे यहाँ पे हमने x की पावर 1 को कॉमन किया, मिनिमम पावर 1 थी, 2 है, तो एक x की पावर 1 बचती है अंदर द ब्रैकेट। y सेम टू सेम है और z सेम टू सेम है, तो अंडर द ब्रैकेट अब कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ x बचता है, क्योंकि पावर 2 थी, हमने 1 बाहर की थी। x की पावर 1 सेकेंड टर्म में आते हैं, x की पावर 1 ऑलरेडी बाहर है, y की पावर 2 है, यानी कि यहाँ पे एक y और बचेगा, और z हमारा बाहर है। यहाँ पे थर्ड टर्म में आप देखेंगे x और y हमारा ऑलरेडी बाहर है, z की पावर 2 है, z की पावर 2 है, दैट मीन्स हमारा एक z अंदर आएगा। इधर हम एक और z लिख देंगे, और कुछ हमको नहीं करना, दिस इज द आंसर। नाउ सेम वे we'll move to the another part of this question. इसमें क्या है हमारा a x स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन को फिर से हम लिख देते हैं, a x स्क्वायर और क्या है y है, प्लस b x y स्क्वायर। तीनों में देख रहे हो आप, दोनों में x भी है y भी है सेम, तो ये तो कॉमन हमारा होगा bx, बट bx y स्क्वायर है। और थर्ड टर्म में हमारा क्या है, सी एक्स वाई जेड, सी एक्स वाई जेड। अब सेम कौन कौन से दिख रहे हैं, यहाँ पे भी x है, सेकेंड टर्म में भी x है, थर्ड टर्म में भी x है। x लिखा, x की सबसे छोटी पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो एक बारी हम सिर्फ x लिखेंगे, y की पावर भी मिनिमम 1 ही सेम है। अब बचेगा जो, वो हम अंडर द ब्रैकेट क्या बच रहा है, यहाँ पे a बच रहा है, a को लिखा, और x की पावर 2 थी, क्वेश्चन में 2 थी, हमने 1 ले ली, तो एक और x हमारा रह जाएगा। y तो हमने कॉमन ले लिया है, तो दोबारा y हम अंडर द ब्रैकेट नहीं लिखेंगे। और क्या यहाँ बचता है, b बचता है, जो बचता है वो हमने b लिखा। x हमारा सेम है, x की पावर 1 मैं पहले ले चुकी हूँ कॉमन, लेट मी राइट इट विद अनदर इंक, x की पावर 1 ये हम पहले ले चुके हैं, यहाँ पे है ना, सो हम x नहीं लिखेंगे, y स्क्वायर है, तो एक बार y और जाएगा, प्लस यहाँ क्या बच रहा है, c बच रहा है, c लिखेंगे। x की पावर 1 ऑलरेडी बाहर है, y की पावर 1 भी ऑलरेडी बाहर है, z कॉमन नहीं लिया, तो z यहाँ बचेगा। तो ये आंसर हो गया हमारा फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द अनदर क्वेश्चन। Now in question number 3, how many terms are here? 1, 2, 3, 4. There are 4 terms. 1, 2, 3 and 4. So whenever there are 4 terms, तो हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग कैसे करेंगे, जो भी हमको टर्म्स सिमिलैरिटी जिन भी टर्म्स में दी, जैसे आप इसमें देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये सेम टू सेम लग रहा है, तो आप इसको ले सकते हो साथ में। और 8x और 8y, इसमें भी हम देख सकते हैं क्या सेम लग रहा है हमें, 8 सेम दिख रहा है। तो आइदर आप इन दोनों का एक सेट बना लो, इसकी ग्रुपिंग कर ले, 2 टर्म्स की ग्रुपिंग कर लेते हैं, ये दोनों की ले लेते हैं, और इन दोनों को हम ब्रैकेट में रख लेते हैं कि हम इन दोनों का एक सेट बनाएंगे। अभी सेम क्या है, आप देखेंगे एक्स स्क्वायर वाई में आपका सेम है x, और यहाँ पे भी x सेम है, यहाँ पे और यहाँ पे क्या सेम दिख रहा है, आप ये देख सकते हो,
x हमारा सेम है दोनों में। तो 1 टाइम x, क्योंकि मिनिमम पावर यहाँ पे क्या 1 है पावर x की, यहाँ 2 है, तो इसीलिए x की पावर 1 लिया और बचेगा क्या यहाँ से, क्योंकि x स्क्वायर था तो आपका एक x रह जाएगा और फिर प्लस, फिर से ये वाला x तो हमारा पूरा पूरा बाहर हो गया है और तो क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पे y बचेगा। अब आते हैं हम इसके सेकेंड टर्म पे आते हैं, सेकेंड जो सेट बनाया हुआ है, बीच के साइन को ध्यान रखिएगा, प्लस साइन है तो ये प्लस साइन हम साथ साथ लेके चलेंगे। अब इसमें सेम क्या दिख रहा है, हम आपको दिखाते हैं, इसमें सेम हमको दिख रहा है 8, यहाँ पे भी 8 है और यहाँ पे भी 8 है, आप देख सकते हो 8 और 8 सेम है, तो 8 सेम था तो एक बार लिख लिया। अब बचेगा क्या क्या टर्म, यहाँ पे x बच रहा है तो x को लिख दिया हमने, और क्या बच रहा है यहाँ पे y बच रहा है तो y को लिख दिया हमने, जो बच रहा है उसको हमने लिख दिया। अभी भी ये काम हमारा फिनिश नहीं हुआ है, स्टिल वी हैव टू फाइंड आउट कि अब इस पूरे एक्सप्रेशन में अब क्या सेम दिख रहा है। इन दोनों में हम देख सकते हैं कि हमें x प्लस वाई यहाँ पे भी दिख रहा है, x प्लस वाई यहाँ पे भी दिख रहा है, तो ये दोनों जो फिर से सेम है, ये दोनों x प्लस वाई और x प्लस वाई, इसको हम 1 टाइम लिखेंगे, सिर्फ एक बार x प्लस वाई, 2 बार नहीं। अब इसको हमने फिर से ले लिया एक बार, x प्लस वाई सेम है, अब हम बनाएंगे दूसरा ब्रैकेट। कौन से टर्म बचते हैं, हमने x प्लस वाई तो ले लिया, तो यहाँ पे अब क्या बचता है आपका x, अब जो बचेगा वो हम दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, x बच रहा है, बीच का साइन है प्लस तो प्लस साइन लेंगे हम, और क्या बच रहा है यहाँ पे 8 बच रहा है, 8 को हम लिख लेंगे। सो ये आपका फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में जो हमने सेट बना लिया था फर्स्ट 2 टर्म्स का एक साथ और बाकी के 2 टर्म्स का एक साथ, यहाँ पे हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। आप देख सकते हो देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी। सो वन मोर पॉसिबिलिटी के लिए हम आपको फिर से दिखाते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। तो अब आप इसमें देखोगे, आप चाहो तो मैंने पहले दोनों का लिया था, आप इसको और इसको भी देख लो, क्योंकि भाई x आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, x आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर और 8x को एक साथ रख लिया, इन दोनों का सेट बना लेते हैं, बंद कर लिया ब्रैकेट में, बीच में साइन है प्लस, यहाँ पे देखेंगे एक्स वाई के साथ कौन सा साइन है, प्लस साइन है, तो इस प्लस साइन को हम साथ में लेंगे, क्योंकि ये एक्स वाई के साथ हमारा प्लस साइन है, प्लस साइन बनाया, वैसे भी आप प्लस ही बना लीजिए। और फिर क्या बचता है, बाकी 2 टर्म हम कौन से लेंगे, एक्स वाई, तो एक्स वाई लिया और 8y भी हमारा था, तो इन दोनों का एक सेट बना। अब इसमें देखेंगे एक्स स्क्वायर और 8x में क्या सेम है, x सेम है, x को किया हमने बाहर कॉमन, ये x की पावर 2 में से एक x की पावर ले चुके हैं, तो एक x हमारा रहेगा साथ में, क्योंकि ये x हमारा पहली बाहर है, बच क्या रहा है सिर्फ 8, तो प्लस 8 आप रखोगे प्लस, अभी फिर से देखेंगे इसमें x है, इसमें क्या x है, नहीं है, y हमारा सेम है, तो y को रखा हमने एक बार बाहर, क्या बच रहा है, x बच रहा है, फर्स्ट टर्म में xy में x बच रहा है, x अंदर रहेगा, और 8y में हमारा 8 बचता है क्योंकि y बाहर है। अब फिर से इन दोनों में क्या सेम है, x प्लस 8, तो x प्लस 8 हमने फिर से लिखा क्योंकि ये हमारा सेम था, और फिर ब्रैकेट बना के फिर हमारा क्या बच रहा है, पहले में आप देखो कि x बच रहा है, x लिखा और फिर y लिखा, तो आपका आंसर x प्लस 8 x प्लस y, ये आपका आंसर होता है। तो आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आया, हमने किसी का भी पेयर बनाया तो आंसर हो गया। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द फ्यू मोर डिटेल ऑफ दिस पेयरिंग में। ओके, थैंक यू टू एवरीवन।